Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and a very warm welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today, of course, being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on mutual fund and related issues. Feel free to connect with us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And of course, prefix the Delhi code 011. Along with my co-anchor Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और कहीं से भी मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर। At the outset, headlines first, domestic markets to focus on quarterly earnings, auto sales, US GDP data and tariff announcements for Qs next week. Foreign investors pump in over 17,000 crore rupees in the Indian equity markets last week, and global gold prices fall 1.2% last week to below $3,300 per ounce. अगले सप्ताह देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा कंपनियों की तिमाही आमदनी, वाहनों की बिक्री, अमेरिका की जीडीपी के आंकड़ों और आयात शुल्क से जुड़ी घोषणाओं पर। विदेशी निवेशकों ने पिछले सप्ताह में भारत के शेयर बाजार में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और पिछले सप्ताह विश्व बाजार में सोने की कीमतें 1.2% गिरकर $3,300 प्रति औंस के नीचे पहुंची। Domestic markets will focus on a slew of data points, including next lot of quarterly earnings, monthly auto sales, US jobs and GDP, Bank of Japan's interest rate decision, and tariff developments for Qs next week. On Monday, the market will first react to Reliance Industries' quarter earnings and growth in China's industrial production. The March quarter earnings season will be in full swing with release of earnings scorecard of nearly 190 companies, including Ultratech Cement, Bajaj Finserv, Bajaj Finance, Kotak Mahindra Bank and SBI. Globally, apart from news related to US-China trade developments, the focus will be majorly on the US economic data, including first quarter GDP growth estimates and real consumer spending. Back home, the market participants will focus on industrial and manufacturing production numbers for March due on April 28th, followed by fiscal deficit data for March on April 30th. Monthly auto sales numbers will also be in focus in the later part of the next week. And Subodh, I believe our first listener has joined in, Pavitra from Kolkata. Pavitra ji, अपना सवाल पूछिए। पवित्रा, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? Meanwhile, let's go to the next listener, Subodh. अगले हैं दिल्ली से राकेश। राकेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर जी। राकेश जी, सवाल पूछें। हाँ, एक्सपर्ट से मैं ये पूछना चाहूंगा, ये गोल्ड के रेट कहाँ डिसाइड होते हैं और ये इतने हाई हो जाते हैं और कम हो जाते हैं? और ये एक यूलिप के बारे में आप चर्चा कर रहे थे कार्यक्रम में, यूलिप के बारे में बताइए। लास्ट एपिसोड में यूलिप के ऊपर पूछ रहे थे, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है ठीक से। राकेश जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो गोल्ड है इसका प्राइस बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे तय होता है।
जो गोल्ड है इसमें एक ये एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत अच्छा है। तो जब भी कभी मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है या फियर होता है तो इसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और पिछले कुछ सालों में अभी ये हुआ है कि सेंट्रल बैंक्स भी इसकी इसी क्वालिटीज़ की वजह से अपना थोड़ा सा जो है गोल्ड बहुत ज़्यादा स्टैकअप करने लगे। तो जब भी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा गोल्ड का प्राइस ऊपर चले जाता है। एक नॉर्मल डिमांड और सप्लाई का जो अपना इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल होता है वो एप्लीकेबल होता है। और दूसरी बात जो यूलिप्स के लिए आप पूछना चाह रहे हैं, यूलिप्स बेसिकली एक हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपका एक लाइफ इंश्योरेंस और आपका एक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। और ओल्ड टैक्स रेजिम में सेक्शन 80C में आपको इसका टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। बट आमतौर पे ये देखा गया है कि यूलिप्स भले ही एक बहुत ही टेम्पटिंग प्रोडक्ट लगते हैं कि 3-in-1 चीज है, आपको एक ही प्रोडक्ट में सब चीजें मिल रही है, बट ये बहुत ही कारगर साबित नहीं होते। सबसे पहला रीजन ये होता है कि इसमें जो भी आपका लाइफ कवर होता है वो आपको जो भी आपका एनुअल प्रीमियम होता है आमतौर पे उससे 10 times मिलता है। बट वो एज अ लाइफ कवर बहुत सफिशिएंट नहीं होता क्योंकि देखिए लाइफ कवर का बेसिक जो एक महत्व है वो ये है कि जो भी इन्वेस्टर है, जो भी इंश्योर्ड है, उसके एब्सेंस में जो फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स है उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए सफिशिएंट मनी हो। तो उस हिसाब से ये आमतौर पे जैसे जो लाइफ कवर होता है ये बहुत ही कम रह जाता है क्योंकि जनरली एज अ रूल ऑफ थंब आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 10 to 12 times आपका लाइफ कवर होना चाहिए। तो लाइफ कवर के लिए यूजुअली बेटर रहता है कि आप एक प्योर टर्म प्लान ले, वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। एक अगर मैं आमतौर पे बात करूं तो एक हेल्दी मेल के लिए 35 की एज के आसपास 1 करोड़ का कवर आराम से कुछ 17-18 हजार रुपए के आसपास मिल जाना चाहिए। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप 5 लाख रुपए यूलिप में प्रीमियम डाल रहे तो वहां पे आपको लाइफ कवर मेरे ख्याल से उसका 10 times ऐसे 50 लाख तक का ही मिलेगा कल। और जो रही बात जो इन्वेस्टमेंट का है, जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आपके काफी सारे यूलिप में चार्जेस कट जाते हैं, जैसे कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज हो गया। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज वो क्या करेंगे कि कुछ पोर्शन आपका जो लाइफ कवर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आपके पैसों में से डिडक्ट करेंगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसी को इन्वेस्ट करेंगे। तो ये भी एक थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप लाइफ कवर के लिए एक प्योर टर्म प्लान लीजिए और इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना है तो आप म्यूचुअल फंड को चुनिए, ज्यादा बेटर रहेगा। जी, अगले कॉलर है कर्नाटक से कुमार नायक। कुमार, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सभी को नमस्कार। नमस्कार। तालिमा जी नमस्कार। मेरा नाम कुमार नायक, कर्नाटक से बोल रहा हूँ सर जी। तो मेरा एक क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। सपोज मेरे पास कोई लमसम अमाउंट है तो इसको मैंने म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे क्या फायदा हो सकता है, इस बेनिफिट के बारे में थोड़ा मुझे एलाबोरेट करना चाहिए सर। थैंक यू। कुमार जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म आमतौर पे देखिए जो म्यूचुअल फंड है वो भी कई प्रकार के होते हैं। इक्विटी का भी होता है, फिक्स्ड इनकम का भी होता है और एक हाइब्रिड भी होता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम जो हमारा होराइजन होता है वो 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम समय के लिए हम लोग पैसे का निवेश करते हैं इक्विटी मार्केट में तो वो थोड़ा ज्यादा रिस्की रह सकता है। जो इक्विटीज है वो शॉर्ट टर्म में काफी वोलेटाइल होती है। आपने देखा होगा, आपने काफी सुना होगा कि जैसे सेंसेक्स है आज ऊपर कल नीचे, तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा शार्प अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल 7 साल में यूजुअली वो एक थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देते हैं आपके रिटर्न को और आपको एक अच्छा मुनाफा देते हैं। रही बात कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करके फायदा होगा कि नहीं होगा, देखिए सिंपल सी बात है। जो इक्विटी में अगर हम लोग निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, बेसिकली एक ये पूल्ड व्हीकल है जिसके थ्रू हम लोग इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की मदद से, एक बल्कि पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में। और जब तक कि जो इक्विटी है, जो स्टॉक्स है, वो हमारी इंडियन इकोनॉमी और बिजनेस का जैसे जैसे ग्रोथ होता है उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। तो जैसे कि मेरा मानना है कि एक इंडिया बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है और अगर आपको लगता है कि जैसे इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी से आपको फ्यूचर में
बिल्कुल फायदा होना चाहिए और वो होएगा, तो आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड उसके लिए एक बहुत ही ईजी तरीका है। बट यहाँ पे आपने एक वर्ड यूज किया था कि लमसम, तो ये मेरी सलाह रहेगी कि आप लमसम निवेश ना करें। अगर आपके पास लमसम है भी तो उसको कुछ पीरियड ऑफ टाइम में बांट के फिर निवेश करें। उससे होगा ये कि आप एक मार्केट के गलत लेवल पे, या जिसको कह सकते हैं पीक पे निवेश करने से बच जाएंगे। देखिए, मार्केट का हम लोग ये नहीं बता सकते कि आज वो पीक पे है कि नहीं है, या फिर ये सही टाइम है। तो अगर हम उसी चीज को तोड़ के लगाएंगे, जैसे कुछ महीनों में स्प्रेड कर देंगे, तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज है वो एवरेज हो जाएगी और रिस्क काफी मिनिमम हो जाएगा। आमतौर पे कितने पीरियड पे आपका पैसा स्प्रेड करना चाहिए, उसके लिए थंब रूल होता है कि जितना टाइम आपको कमाने में लगा उसका आप हाफ टाइम ले लीजिए, बट 3 साल से ना बढ़िए ज्यादा, क्योंकि 3 साल में नॉर्मली पूरा मार्केट अपॉर्चुनिटी आपका वो पूरा का पूरा कैप्चर कर लेता है। सो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर कुछ ऐसा अमाउंट है कि आपको लगता है जैसे आपका 1 साल का बोनस है या कुछ है, तो आप 6 महीने में स्प्रेड कर दीजिए। और काफी बड़ा कोई एक जैसे लाइफ टाइम विंडफॉल है, जिससे कुछ आपने प्रॉपर्टी सेल करी है या कुछ काफी बड़ा अमाउंट है, तो आप उसको 3 साल में स्प्रेड कर दीजिए। महेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। महेश जी, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट अथॉरिटी। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मेरा एक्चुअली आई एम 56 इयर्स एंड मैंने एक्चुअली अभी अर्ली रिटायरमेंट लिया हुआ है। सो मेरा भी नेक्स्ट अगले मतलब 3 to 4 years का मुझे कोई अमाउंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, व्हिच एक्चुअली द माय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड ऑल विल टेक केयर ऑफ माय monthly requirement or whatever. I have a corpus of retirement corpus around 50 to 60 lakhs available है। तो मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो प्रॉब्लम मतलब मेरा मैं यही सोच रहा था कि मैं आपको कुछ फंड हाउसेस के लिक्विड फंड में डाल के लमसम, एंड उससे मैं एक्चुअली हाइब्रिड फंड्स में मंथली जो है एसटीपी करूं जो भी है, तो वो करना चाहता हूं। तो वो जो हाइब्रिड फंड है, हाइब्रिड कौन सा हाइब्रिड करें? इज इट कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और कुछ मतलब जो भी बताइए, और वो मुझे एटलीस्ट मतलब मे बी मिनिमम 3 फंड हाउसेस को सजेस्ट करेंगे। आपका जो ये वाले पैसे की रिक्वायरमेंट है कितने सालों के बाद होगी? देखिए, मेरे ख्याल से हमारा कांटेक्ट कट चुका है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि जैसे आपने कहा था ये आप ग्रोथ के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाह रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जनरली आपका, अगर आप हाइब्रिड में जाना चाहते हैं, आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स ले सकते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड में यूजुअली 65 to 80% आपका जो एक मैंडेट है इक्विटी का होता है, बाकी का फिक्स्ड इनकम का होता है। आमतौर पे ये फंड्स यूजुअली 70-75% इक्विटी में रखते हैं। अगर मैं कुछ अच्छे फंड्स की बात करना चाहूँ इस कैटेगरी में, तो ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट है, मिराए असेट का आप अग्रेसिव हाइब्रिड ले सकते हैं, DSP का आप अग्रेसिव हाइब्रिड ले सकते हैं। ये तीनों ही अच्छे फंड्स हैं। जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से प्रेमचंद। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, नए ग्राहक के लिए म्यूचुअल फंड में पहली बार पैसा लगाना है, तो सीनियर सिटीजन है हम, तो उसमें हम कैसे सरल तरीके से पैसा लगा सकते हैं, और कितने टाइम तक ये हमारे को कंटिन्यू लगाना पड़ेगा जब हमारे को बेनिफिट मिलेगा? प्रेम जी, देखिए, ये मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि आप पहली दफा निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो मैं कुछ चीजें होंगी जो बताना चाहूंगा कि ये फिक्स डिपॉजिट से या बाकी एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से कैसे अलग होते हैं। यहाँ पे एक कोई सा भी गारंटीड रिटर्न नहीं होएगा, ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मान लेते जैसे आप इक्विटी फंड में लगा रहे, इक्विटी यानी कि ये मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगाएंगे, तो यहाँ पे बीच में ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में जो आपका निवेश किया हुआ पैसा है वो थोड़ा सा नीचे चले जाए। जैसे अगर आपने मान लीजिए कुछ 1 लाख रुपए लगाए और मार्केट गिर गया, तो हो सकता है उसकी वैल्यू इंटरमिटेंटली 95,000 भी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप ये चीज़ जान लीजिए, और इक्विटी फंड्स में तभी निवेश करिएगा अगर ये पैसा आपके वाकई लॉन्ग टर्म के लिए है, आप इससे बीच में कुछ इनकम डिराइव नहीं करना चाहते और ये सिर्फ ग्रोथ के लिए है 5-7 साल या उससे ज़्यादा के लिए। बीइंग अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि जो अभी मैंने पिछले कॉल में 2-3 नाम बताए, ICICI का अच्छा है, मिराए का अच्छा है, DSP का अच्छा है। वहीं यही मैं कहूँगा कि
अपना केवल लॉन्ग टर्म पैसा लगाइएगा। और अगर दूसरी तरफ आपकी कुछ ऐसी अपेक्षा है कि आप इससे बीच में इनकम जनरेट करना चाहते हैं बीइंग अ सीनियर सिटीजन, तो दूसरी कैटेगरी होती है हमारी इक्विटी सेविंग्स फंड्स। वो यूजुअली आपका 1/3 पैसा प्योर इक्विटी में लगाते हैं, 1/3 पैसा आपका आर्बिट्राज में लगाते हैं और 1/3 डेट में लगाते हैं। आर्बिट्राज जो होता है वो आपका टैक्सेशन इक्विटी की तरह होता है, लेकिन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फिक्स्ड इनकम की तरह होता है। तो मोटा मोटा इस पूरे पोर्टफोलियो में आपका जो प्योर इक्विटी का एक्सपोजर रहता है वो अराउंड 1/3 अराउंड 40% रहता है। तो रिटायरमेंट में अगर आपका इनकम जनरेशन गोल है तो ऐसी सिचुएशंस में इस तरीके का पोर्टफोलियो ज़्यादा बेहतरीन रहता है। और इनमें बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपने कॉर्पस का एक विड्रॉल करें तो जो आपका जो एनुअल विड्रॉल है कोशिश करके उसको 4-5% ऑफ द टोटल कॉर्पस ही रखे, तो उससे कि आप एक लंबे समय तक इन्फ्लेशन एडजस्टेड तौर पे अपने लिए इनकम का विड्रॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम गाजियाबाद। आशु जी अपना सवाल पूछिए। Very good evening. Good I evening. have a question. So, looking at the prices of the gold, which is now nearing 1 lakh, do you think so? It is a sense. I haven't invested so far in gold, so I was just thinking, would it be a right time to start with some gold mutual funds? And if yes, can you recommend me few mutual funds with respect to gold? Second thing is with respect to Trump's trade war and which is going on for quite some time, would it be sensible enough to invest in multi-cap or in large cap as of now? And if you can recommend in the current situation 1 or 2 mutual funds which I can start investing with respect to large cap or multi-cap based on your guidance. Thank you very much. Ashuji, coming to your first question, I would say, see, gold is basically a very good hedge for your portfolio. What we have seen over the time is that gold is precisely not good as a long-term investment, because equities over the long term generally give higher returns. But whenever there is fear in the market or uncertainty or any geopolitical tension or the kind of things we are seeing right now, gold generally shines in such situations. And because of the same, it is one can probably consider allocating around 10 to 15% or somewhere around 10% of the portfolio to gold because of its hedging quality. So for that purpose, yes, you can allocate a small portion of your portfolio to gold. Secondly, the best way generally to buy gold is through sovereign gold bonds. I mean, it's a government issued bond, and besides the appreciation in the price of the gold, it gives you 2.5% additional interest over and above that price. But somehow new bonds are not being issued for about last 1 year. However, the older bonds are still available in the market on the stock exchange. They are being traded, but because of the same reason, they are being traded at a premium. So in that scenario, you can go for the gold ETF or FOF. So gold ETF and FOF both will be investing in gold. The difference is that the gold ETFs are traded on stock exchange like any other equity share. So for that, you need to necessarily have a demat account. In case you don't have a demat account, you can go for the gold FOF. The gold FOF would be in turn investing in gold ETF, and you can very conveniently open a SIP in gold FOF for that purpose. And I would say just look for a fund which has a lower expense ratio, because they will be precisely tracking the gold. So any gold ETF or FOF with a low expense ratio should be good. And coming to your second question, see, right now it's something related to the trade war, but every now and then some kind of these things keep happening. Events like these are not new. So if you go back in the history, many things keep happening. So I would say don't focus on the short-term noise. Just maintain a diversified portfolio. By diversified, I mean probably somewhere around 50 to 70% of your portfolio should be in large caps and the rest in mid and small caps, so that you have both stability as well as growth opportunity, and maintain a longer term horizon, at least like 7-10 years, and invest in a staggered way. अगले कॉलर सहारनपुर से हैं विवेक। विवेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
मार्केट इंडिया टीम और आज के एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें सर जो हमारा मैंडेटरी होता है, या तो उसको हम SBI अपने बिल पेमेंट में ऐड करके, बिलर ऐड करके उसको हम उसका पेमेंट कर सकते हैं अगर सिक्के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम बिलर वन टाइम जो मैंडेटरी होता है उससे कर सकते हैं। तो सर हर ऐप का अलग अलग, हर AMC का अलग अलग मैंडेटरी होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए सर, क्योंकि मेरा अलग अलग शिफ्ट चल रहा है, तो उससे मुझे प्रॉब्लम ये आती है कभी किसी का बिलर के रूप में ऐड करना पड़ रहा है या मैंडेटरी, इसका आप कोई प्रॉपर गाइड करिए सर इसके लिए। विवेक जी देखिए, ये आपका हर जो भी आप SIP रजिस्टर करेंगे उसके लिए पेमेंट के लिए एक तरीके से आपके बैंक को ऑथेंटिकेशन देनी होती है, और दोनों तीनों तरीके होते हैं। कहीं पे आप वन टाइम मिंटेड NASH के थ्रू कर सकते हैं, कहीं पे जैसे कि आपने बोला आप बिलर ऐड करके कर सकते हैं। तो ये जब भी आप कोई नई SIP शुरू करेंगे तो ये एक आपके लिए वन टाइम एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि इसके बिना आपके बैंक को वो ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगी। अगर फंड हाउस उनके पास रिक्वेस्ट भेजेगा भी कि आपने SIP रिक्वेस्ट करिए, तो होता क्या है कि फंड हाउस उससे कुछ 2-3 दिन पहले वहाँ पे बैंक में आपके इंटीमेशन भेजता है कि जैसे मान लीजिए 5,000 का SIP है, तो कि आपके अकाउंट से 5,000 ऑटोमेटिकली डिडक्ट होने हैं। तो ये जो आप स्टार्टिंग में अप्रूवल देते हैं, ये एक तरीके से आप बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हाँ देखिए मैंने इस म्यूचुअल फंड के लिए किया है, ये मेरी जानकारी में, तो जब भी इतने अमाउंट का इनकी तरफ से सूचना है आप मेरे अकाउंट से दे दे। तो ये वन टाइम प्रोसेस रहेगा। आप जितनी SIPs, जितने फंड हाउसेस, जितने फंड्स के साथ स्टार्ट करेंगे, आपको इनिशियली एक बार ये जरूर सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ये ऑटो पायलट पे रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसके बाद। Our next caller is from Vadodara. अनिल जी अपना सवाल पूछिए। मार्केट मंत्री की टीम को नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 7 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें से 4 में मेरा SIP चल रहा है। अभी मैंने मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है, इसमें SIP बंद करवा दिया, लेकिन अभी ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ का जो फ्लेक्सी कैप है, इसमें मैं क्या करूँ? अभी मैं इसको चालू रखूँ, बंद रखूँ? देखिए ABSL का जो फ्लेक्सी कैप आप मेरे को बता रहे हैं, इसकी अभी ये फंड कुछ पिछले समय से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन एकदम शॉर्ट टर्म में इसने थोड़ा सा रिवाइव किया है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसमें अपना, अगर अभी आपको पैसे, मतलब इसके आपको अंडर परफॉर्मेंस की वजह से आप चाह रहे हैं, तो आप इसमें इंक्रीमेंटल पैसा चाहे ना डालें और थोड़े समय के लिए अभी आप रुक सकते हैं। बट इसमें ऐसी कोई परफॉर्मेंस में इतनी कोई दिक्कत की बात भी नहीं है कि आपको चिंता हो, और जो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो आप इसमें निकालना चाहे। अभी रिसेंटली में मतलब पिछले कुछ सालों में इसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन एकदम रिसेंट परफॉर्मेंस में इसने थोड़े से साइंस ऑफ रिवाइवल दिखाए है। तो आप अभी चाहे, अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रुक रहे, तो आप अपनी इंक्रीमेंटल SIPs इसमें आप कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। जी, बिहार से टिंकू राय हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्कार। बोले सर, मैं टर्म पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस और ये हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं सर, तो कैसा लिया जाए जो मजदूर आदमी है, जो अच्छा रहे? यही सवाल है। कुछ बताना चाहेंगे इस पर आकार आप, कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, आप टर्म इंश्योरेंस हम हमेशा बताते हैं कि आप ले सकते हैं, LIC का भी होता है, अगर सरकारी कंपनी का लेना चाहें, या निजी कंपनियों में जा सकते हैं। देखिए टर्म इंश्योरेंस के लिए तो मैं ये कहूँगा कि हमारी प्रधानमंत्री की एक योजना के तहत 2 लाख रुपए का एक टर्म इंश्योरेंस होता है, और उसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है। तो आप अपने किसी भी बैंक में, जैसे अगर आपका स्टेट बैंक में खाता है, तो वहाँ पे ये नॉर्मली आपका करवा देना चाहिए उनको। आप उनसे एक दफ़ा कांटेक्ट कीजिए, और साथ ही में एक टर्म इंश्योरेंस के अलावा उनका एक प्रधानमंत्री की योजना की एक एक्सीडेंटल कवर भी होता है। तो उसका प्रीमियम बहुत ही नेग्लिजिबल सा होता है, बहुत ही थोड़ा सा प्रीमियम होता है, और वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। हाँ जी। और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्योंकि वो एक महंगा इंश्योरेंस है। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा एक कम उसमें जानकारी नहीं होगी जी, भी। और वैसे भी अब कई जगह पे आयुष्मान कार्ड है और तमाम तरह के दूसरे उपाय आ रहे हैं, बिल्कुल, तो शायद वो ऑप्शंस भी तलाशे जा सकते हैं। गौरव जी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। गौरव जी अपना सवाल पूछिए।
नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार सर, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल है, ये जो सिंगापुर से जो इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में, क्या उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा? अभी रिसेंटली कुछ पेपर में खबर आई थी कि सिंगापुर, यूएई, पुर्तगाल ऐसे कुछ देश है जिन्होंने, क्योंकि वो ट्रस्ट के से इन्वेस्ट किया गया यूनिट में, तो वो शेयर में नहीं माने जाएंगे। ऐसी बात में ये बात की क्या सच्चाई है? क्या वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स जो उन्होंने वहां से किया उस पर नहीं लगेगा क्या? पहली बात। दूसरी बात सर, मेरे को एक देख रहा हूँ मैं कि ये SBI का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड इज परफॉर्मिंग वेरी मच बेटर देन एनी मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड. So we consider this fund for long-term investment because banking is something which will always flourish. Whatever industry will flourish or not flourish doesn't matter, but banking will flourish because of them. So is the logic right in this? Thank you. I would like to answer the second question first. See, SBI Banking Financial Services Fund is a good fund even within its category. So right now the fund is doing good, and as you rightly mentioned, it's a sectoral fund. It's limited to the banking companies. So probably it is doing good right now, but then you'll have to be ready for the phases when if banking sector companies face some kind of difficulties or rough patch, then the fund would probably plummet more than any other diversified equity fund, and that's a trait possibly for every sectoral and thematic fund. So from that purpose, I would say do not invest your complete portfolio in a banking and financial service fund. This can probably your satellite fund if you're looking for some additional exposure in the sector, because if you invest in a diversified fund, you will anyways get exposure to this particular sector. So it's always good to invest in a diversified portfolio to avoid any intermittent sharp ups and downs. And going to your first question, see, there are certain DTAA, direct tax avoidance agreement rules with each country, so one would have to look for the same. योगेश joins us from Delhi. योगेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार आप सबको। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि ये बड़ा अहम सवाल है कि कॉन्ट्रा फंड में और वैल्यू फंड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, तो कैसे इनके बीच में एक आम निवेशक डिफरेंशिएट करे वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में। दूसरा मेरा सवाल ये है कि देखिए, जो वैल्यू फंड होता है वो बेसिकली उनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि जो आपके जो स्टॉक्स है उनको एक ऐसे प्राइस पे खरीदे कि जिनकी वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे मिल रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई सी चीज़ सस्ते में मिल रही है, आपको लगता है कि उसकी जो एक एक्चुअल वैल्यू है वो ज़्यादा है और आप उससे सस्ते में खरीद रहे। वहीं अगर हम लोग बात करें जो कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी है, वो नॉर्मली एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी, यानी कि जो एक आमतौर पे बाकी के फंड्स और जो मार्केट का मानना है किसी एक चीज़ में कर रहे, उससे एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेते, डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स में यूजुअली इन्वेस्ट करते हैं। जी, विदेशी निवेशकों ने पिछले सप्ताह में भारत के शेयर बाजार में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। इससे पहले 18 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में उन्होंने कुल 8,500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 21 से 25 अप्रैल के दौरान कुल 17,425 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन अप्रैल में वो अब तक बाजार से 5,678 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। Gold prices fell 1.2% during the last week as the dollar rose and signs of easing US-China trade tensions weighed on bullion prices. Gold prices ended the week at $3,298 an ounce. The US dollar meanwhile rose and was on track for its first weekly gain since March, making bullion more expensive for overseas buyers. Gold, traditionally seen as a hedge against geopolitical and economic uncertainties, scaled a record high of $3,500 per ounce. अब वक्त कम है, एक कॉलर और जुड़े हुए थे अहमदनगर से मुकुंद, लेकिन आज हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। आकार, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Listeners, before we wrap up today's edition, a reminder of the headlines. Domestic markets to focus on quarterly earnings, auto sales, US GDP data and tariff announcements for Qs next week. Foreign investors pump in over 17,000 crore rupees in the Indian equity markets last week, and global gold prices fall 1.2% last week to below $3,300 per ounce. And that's it in today's edition of Market Mantra. Goodbye.
Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.